मुझे लास्ट ईयर हुआ. I lost my father to COVID. But I can tell this one thing for sure: whatever I am today and whatever I'll be achieving in this entire life, I owe this to him. Hello guys, this is Shayansh Goyal and welcome to my YouTube channel. So currently I'm working as a software engineer at Techion and आज हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट मौजूद है. वो नन अदर देन प्रिया वाजपेयी हैं एंड उन्हें 2+ years ऑफ एक्सपीरियंस है एंड वो अडोब में काम कर रही है. आज हम उनसे बहुत बात करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं. हाय प्रिया, आप कैसे हो? I've been very good, Shayansh. Thank you so much for having me on your channel. ओके, तो आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, आप थोड़ा अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर दीजिए. Sure. So just like you, I am also a 2020 graduate. 2020 में I have passed out with my majors in CSE, BTech only. After passing, I did join in Morgan Stanley. 6 महीने के लिए वहाँ पे internship करी and post my internship, I joined in Adobe as an MTS, member of technical staff. And shortly after, something around 1 year 3 months, I got promoted to MTS 2, and then thereon I have been working here with Adobe. Apart from this, I do a lot of content creation. People must have seen me on LinkedIn here and there, and then I do a lot of YouTube also. So that is something off the work. So yeah, this is shortly about myself. ओके, तो आप थोड़ा अपने बैकग्राउंड के बारे में बता दीजिए, जैसे कौन से कॉलेज से हो आप एंड आपको अडोब कैसे मिला एंड थोड़ा हम पास में जाके ये सब जानते हैं. Perfect. I mean, this is my favorite part of the interviews, doing the entire story all together. So, ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं. I joined in JIIT, which is JP Institute of Information Technology, Noida campus, back in 2016. EC मिला था. EC मिलने के बाद में there was this hustle of getting a good CGPA and then getting it upgraded to CSE, and then mine got upgraded to CSE. I did a very good hustle. Starting from a 7 CGPA, I went down to getting a 10 SGPA ultimately. So yeah, that was a hustle altogether. फिर बात करते हैं Adobe कैसे मिला. Of course, when we talk about Adobe, it's nothing short of a dream coming true, because मैंने after joining in Adobe ये screenshot भी LinkedIn पे डाला था and that got very viral and famous too. मैंने 2018 में Adobe में internship करने के लिए apply करना चाहा था, but that somehow couldn't be possible back then. And then after joining Adobe via She Codes program, that is one of the most popular hiring program that is conducted by Adobe every year. I was really fortunate that 2018 से जिस कंपनी को चेस कर रहे थे, finally after graduating in 2020, I made it to Adobe. So yes, I got into Adobe via She Codes program. ओके, तो ये एक्सपीरियंस कैसा रहा था कि एक टायर 3 कॉलेज से आपने एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्रैक किया था, क्योंकि टायर 3 जो कॉलेज है उसमें क्या ज़्यादा कंपनीज आती हैं एंड कैसा एक्सपीरियंस था? मतलब आपने ऑन कैंपस प्लेसमेंट में बैठे थे आप कि नहीं, आपने पूरा ऑफ कैंपस ही दिया था? तो इसके बारे में थोड़ा आप बता दीजिए. Absolutely, Shyansh, I think एक बहुत valid question है and काफी लोगों से मेरा इस पे discussion हुआ है. All the people who have passed out with me, all the people who are still in college and perhaps in a tier 3 college. Tier 3 college में entry होने के बाद में सबसे पहले dilemma ये जो mind में आती है वो ये आती है कि career खत्म. अब कुछ भी नहीं हो सकता, कोई अच्छी कंपनी हम क्रैक नहीं कर पाएंगे कभी भी एंड किसी अच्छी जगह नहीं पहुंच पाएंगे, वी वोंट बी एबल टू कंप्लीट आवर ड्रीम्स. ऐसा कुछ भी नहीं होता है. आई टेल यू व्हाई. एंड हो भी सकता है, यू कांट जस्ट डिनाई द फैक्ट कि हाँ ये सब भी एक पॉसिबिलिटी है. इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट. तो जैसा मैंने आपको अपनी जर्नी के बारे में बताया, कॉलेज एंटर करने के बाद में सबसे पहली हसल थी कि इसी को सीएस में कन्वर्ट कराना है. आई वाज प्रीटी मच इंटरेस्टेड, आई वांटेड टू डू दिस. So what I did was I started paying a lot of attention in college. Subjects को वाकई में पढ़ा. It was just not just कि एग्जाम से 3 दिन पहले पढ़ाई करके एग्जाम्स दे दिए, क्लियर कर लिया. I used to really make notes of it. काफी जगह अलग अलग इंटरनेट पे अलग अलग रिसोर्सेज से हासिल करके YouTube वीडियोस, रविंद्र बाबू रोवेला, अब्दुल बाड़ी, इनके वीडियोस देख करके I used to really make notes of it and सब कुछ पढ़ना. उसके बाद CGPA का कुछ इस तरह से बाहर गया. 7 से करते करते हमारा 8.4, 8.5 करते करते 9.2, 9.4 एंड अल्टीमेटली 8वें सेमेस्टर तक आते आते 10 SGPA भी आया. तो दिस वाज माय बात, राइट. इसके बाद बात करते हैं कि कैसे ड्रीम्स ट्रांसलेट हुए. टियर 3 में होने के बाद भी अच्छी कंपनीज, मॉर्गन स्टैनली, अडोबी, इन सब में कैसे जाना हुआ. सो आई थिंक ये चीज हमारी IT इंडस्ट्री बहुत ज्यादा एक्सेप्टिंग हो रही है
they are looking forward to talent, not tags. Now, degree is something which is mandatory to have, but it is not something which is equivalent to your talent. आपका talent, आपका skills, आपकी willingness to learn. Also, there is this very very famous saying, you know, hire a character and then you can train the traits, right? So you can train them to do whatever you want them to do, but अगर वो character ही बंदा लड़ना, मतलब it's like, you know, बहुत बहुत इजी सी चीज है. आपको कुछ नहीं आता एंड यू विल फाइट फॉर इट कि मुझे नहीं आता, दिस इज हाउ आई वांट बी, वर्सेस आपको कुछ नहीं आता बट यू आर विलिंग टू लर्न. ये दो बहुत अलग चीजें हो गई. वो एटीट्यूड होना, राइट स्किल सेट होना, आपके अंदर एक यू नो फाइटिंग स्पिरिट होना, दैट यस, नो मैटर विच टियर ऑफ कॉलेज आई एम फ्रॉम, आई एम इक्वली गुड. इफ आई कैन पुट माई हार्ड वर्क इनटू इट, आई विल बी एबल टू क्लियर दिस वन. So I think ये सब चीजें जब एक स्टूडेंट के अंदर आ जाती हैं, then definitely the industry is very much willing to take you with all of their welcoming hands, and that is exactly what happened with me. अपने एंड पे कोई कमी नहीं छोड़ी अगर हार्ड वर्क के लिए, तो then I was pretty much sure कहीं ना कहीं कि हाँ, whatever my dream companies are, I will be able to make through them. So अब अगर बात करते हैं कि ऑन कैंपस प्लेसमेंट में बैठे या नहीं बैठे, so that is also quite a bit of the story. मैंने स्टार्ट किया प्रिपेयर करना. मेरा आई वॉज वेरी मच इनटू स्पीकिंग. आई यूज्ड टू लव पब्लिक स्पीकिंग. आई यूज्ड टू लव हाउ दिस एंटायर कंसल्टिंग थिंग वर्क. सो आई इनिशियली वांटेड टू गो इनटू कंसल्टिंग कि हाँ, बिग फोर में से कंपनीज आएंगी, डिलॉयट, ईवाई आएगी, एंड इनमें जाकर के बैठना है. इनके लिए होते थे एप्टीट्यूड टेस्ट. नाउ टू प्रिपेयर एप्टीट्यूड आई स्टार्टेड टेकिंग सर्टेन कोचिंग्स. हमारी कंपनीज का आना स्टार्ट हुआ अगस्त में. पहली कंपनी आ रही थी मॉर्गन स्टैनली. अभी मॉर्गन स्टैनली में दे हैड दिस एप्टीट्यूड राउंड, एंड आई जस्ट वांटेड टू सी कि मेरी एप्टीट्यूड की पढ़ाई सही चल रही है या नहीं. डिलॉयट जो सितंबर अक्टूबर में आने वाली है, विल आई बी एबल टू सिट एंड क्लियर डिलॉयट और नॉट, बिकॉज आई डिडंट वांटेड टू मिस ऑन दैट चांस. आई सेट फॉर मॉर्गन स्टैनली. उनका एप्टीट्यूड राउंड हुआ. 2 बेसिक से कोडिंग के क्वेश्चंस थे, वो भी मैंने कर दिए कि चलो आई जस्ट वांट टू गेट माय एप्टीट्यूड का रिजल्ट रेडी. And उसके बाद में out of an entire campus and pool of something around, you know, I can't even remember the number, entire college set, and it's not just JP Noida, it's JUIT, you know, Solon also, it's JUET also, it's Guna campus also, a lot of different places. सभी स्टूडेंट्स में से 10 स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं. उसमें मेरा नाम था, एंड आई वाज अमेज्ड दैट ओके, आई गॉट शॉर्टलिस्टेड, सो व्हाई नॉट आई सिट फॉर द फर्दर राउंड्स आल्सो. एंड देन आई सेट फॉर द फर्दर राउंड्स. देयर वर 4 प्रोग्रामिंग राउंड्स, 3 से 4 डिफरेंट राउंड्स थे, एंड आई मेड इट टू, यू नो, मॉर्गन स्टैनली, व्हिच वाज एन ऑन कैंपस, यू नो, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी फॉलोड बाय PPO, एंड आई डिड रिसीव द PPO एज वेल. एंड सिमिलरली फेब्रुअरी में, नेक्स्ट फेब्रुअरी 2020 में हमको जाना था ज्वाइन करने के लिए मॉर्गन स्टैनली, एंड राइट बिफोर दैट जनवरी में दिस शी कोड्स बाय एडोबी केम अप. So again, I was very, you know, experimenting. I wanted to sit for it, and I just wanted to see कि ठीक है, कुछ हो रहा है या नहीं. We are very much driven by the package also. कि अभी मुझे इतना मिल रहा है, this package is higher, why not sit for it? So that is what I did, and yeah, I was fortunate enough, right things clicked at the right time, and I was able to crack Adobe via SheetCodes. That was like off-campus opportunity. So yeah, these two things happened on campus as well as off-campus. ओके मैं बस एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा. जैसे आपने बोला कि फाइटिंग स्पिरिट एक होना चाहिए ताकि आप जिस भी टायर से हो आपको बेटर कंपनी मिल जाए. एक्चुअली फाइटिंग स्पिरिट होना चाहिए, एंड ये भी होना चाहिए कि एक ही लाइफ है. आप इस लाइफ में आपको एक चांस मिल रहा है, तो आप इस चांस को कैसे आप लेना चाहोगे. आप एक ये करके बैठ सकते हो कि मेरे से नहीं होगा, एंड दूसरा कि आप ये करके आप किसी भी हालत में ये कर लोगे. एंड जो ये सोचते हैं ना, ये किसी भी हालत में कर लेते हैं और वो कर भी लेते हैं. तो ऐसा एक होना चाहिए कि लाइफ ये एक ही चांस दे रही है, एंड ये चांस को आपको कैसे भी, क्योंकि एक लाइफ मिलता है, पता नहीं कितने सालों बाद मिला है, तो इस लाइफ को आपको कुछ मीनिंगफुल बनाना है. तो ये एक बहुत अच्छा चीज़ है, एंड आई थिंक मैं लोगों को बोलूँगा कि फॉलो करिए, एंड आपको जो भी मन है, जिस कंपनी में आपको जाना है, आप बस मेहनत करिए, आपको मिल जाएगा. तो तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे. एंड मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे अडोब हो गया, तो अडोब में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, एंड अडोब के राउंड्स वगैरह कैसे थे? सो अगर हम बात करते हैं अडोबी की, मैं पर्सनली अडोबी की हायरिंग प्रोसेस को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ. वाई? बिकॉज इट्स वेरी होलिस्टिक. मतलब कोई भी आफ्टर दैट 4-5 राउंड्स ऑफ द हायरिंग प्रोसेस, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं रह जाता जो उन्होंने आपका असेस नहीं किया होता, राइट.
They touch DSA, they ask you DBMS, they ask you OS, they ask you puzzles, they ask you design also, very basic design questions, but yes, they are there. And they ask you very generic questions also, which you as a CS undergrad or IT undergrad should be knowing. आपको इतनी एक आई वुड से लॉजिकल थिंकिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए. यू शुड बी एबल टू थिंक ऑन योर फीट एंड कम अप विद द सॉल्यूशन. तो इनकी बात करते हैं हायरिंग प्रोसेस कैसी थी. शी कोड्स अगेन स्टार्टेड अप विद एन एप्टीट्यूड एंड प्रोग्रामिंग ऑनलाइन राउंड. सो आपके एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस होते हैं उसमें. अपार्ट फ्रॉम दैट आपको कुछ प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, 250 ऑफ देम. एंड देन आफ्टर यू गेट शॉर्टलिस्टेड, and there is a very strict criteria. You have to get almost all of your aptitude questions right, because programming is fairly easy to medium, तो वो सभी कर लेते हैं. After you make it to the on-site interviews, my interviews were conducted in the Noida office itself, and all the rounds were there on a single day. एक ही दिन में उन्होंने सभी राउंड्स को कंक्लूड किया था, एंड राउंड्स वर एलिमिनेशन राउंड्स. ऐसा नहीं है कि आपने अगर अच्छा परफॉर्म नहीं किया इन योर इनिशियल फर्स्ट और सेकंड राउंड, यू विल गेट योर चांस इन थर्ड राउंड टू रिवैम्प दैट. नहीं, आप एलिमिनेट हो जाएंगे, यू वोंट बी एबल टू सिट फॉर द नेक्स्ट राउंड. So that was how it was. And then her round में the questions was they were coming from a vast variety. ऐसा नहीं था कि सिर्फ DBMS का राउंड हो गया या सिर्फ OS का राउंड हो गया. नहीं, if they are asking me, पहला जो मेरे से क्वेश्चन पूछा गया it was from ग्राफ. ग्राफ के क्वेश्चन के बाद डायरेक्टली हम लोग बात कर रहे थे मेरे रिज्यूमे में लिखे हुए प्रोजेक्ट्स के बारे में. अगला राउंड स्टार्ट हुआ OS से. उन्होंने स्टार्ट किया OS के कुछ एल्गोरिथम्स पूछी उन्होंने मुझसे, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स. कुछ एक आधो क्वेश्चंस दिए, वो करवा करके देखे. उसके बाद उन्होंने डायरेक्टली एक पजल पे जंप कर दिया. नेक्स्ट राउंड में हम पहुंचे. नेक्स्ट राउंड में दे स्टार्टेड विद माय रिज्यूमे. रिज्यूमे से उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया. ऑल्सो नंबर ऑफ राउंड्स आर नॉट फिक्स्ड. किसी के लिए वो 1 या 2 राउंड हो सकते हैं, किसी के लिए 4 या 5 राउंड हो सकते हैं. इट कम्प्लीटली डिपेंड्स. सो नेक्स्ट राउंड में जाकर के दे स्टार्टेड फ्रॉम माय रिज्यूमे. उन्होंने पूरा स्किम थ्रू किया रेज्यूमे. उसके बाद में ही स्टार्टेड क्वेश्चनिंग मी ऑन SQL एंड कुछ क्वेरीज उन्होंने लिख पाए. उसके बाद वापस से उन्होंने एक क्वेश्चन दे दिया प्रोग्रामिंग का करने के लिए. इट वाज आई थिंक एरे मैनिपुलेशन. इट वाज 2 years बैक, सो आई कांट रिमेंबर द क्वेश्चन एग्जैक्टली. एंड देन लास्ट राउंड में इट वाज अ डिजाइन क्वेश्चन. So this is how they do, and the process was completely different for other people who were interviewing with me. So it's not going to be constant. All that you need to know if you want to clear Adobe is आप पूरा अच्छी तरीके से बेसिक्स पढ़ के आइए. डू नॉट लीव OS और DBMS या सिर्फ आपने DP और ग्राफ कर लिया है और ट्रीज कर लिया है तो आपका हो जाएगा. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. दे आर गोइंग टू टच अपॉन एवरी सिंगल एस्पेक्ट जो आपने एज एन इंजीनियर 4 सालों में पढ़ा है या आपसे एक्सपेक्टेड है कि आपको आना चाहिए. दैट इज व्हाट दे रियली रिक्वेस्ट यू अपॉन. प्लस there is this very special thing even after joining in Adobe. बहुत सारे colleagues और सभी लोग जब interviews देते हैं, this is what we get to observe also. We go with this mindset कि हम लोग on the field thinking वाली problems जरूर देते हैं. Wherein we will give you a situation, we'll give you a problem, and we won't ask you to like write a code for it. Let's say sometimes you can be asked to write a code, of course, but then most of the times we want to see your thinking process. Are you able to logically deduce a solution of that problem? So इस टाइप की चीजों के लिए you have to be very fresh. Don't go with a stressed mind. And I think this was all about the interview experience. एंड ये उस टाइम की बात है जब ऑनलाइन चीजें नहीं होती थी एंड जाके देते थे. तो ये एक बहुत मतलब एक ही दिन में सारे राउंड्स हो जाते थे एंड 3-4 राउंड्स जो थे वेरी एग्जॉस्टिव आल्सो. राइट, क्योंकि और डर भी वजह से आप लोग जाएंगे and it used to go till 6-7 in the evening. लगातार you are sitting in a pool, साथ में आपके 50 बच्चे बैठे हुए हैं. some are getting eliminated, आप लोग से बाहर निकल रहे हैं, some are getting selected. So yeah, that used to be a lot more fun, Shreyansh, wasn't it? Yeah, and और बहुत डर भी रहता था कि अगला क्या होगा, अगला क्या क्वेश्चन पूछेंगे. जो रूम से बाहर आता था उनसे हम पूछते थे कि क्या पूछा, क्या हुआ आपके साथ. Yes. तो ये उस टाइम की बात है एंड अब तो सब ऑनलाइन हो गया है. एंड अब हम नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं. आपने मैं देख रहा हूँ कि आपने 1.5 इयर्स में आपको प्रमोशन मिला SD1 से SD2. तो ये कैसे हुआ? मतलब अगर कोई भी कंपनी ज्वाइन करता है एंड उसे प्रमोशन चाहिए विद इन अ ईयर, क्योंकि SD1 से SD2 बोलते हैं कि टाइम लगता है, 2 इयर्स तो मिनिमम लगता है एंड आपने इतने शॉर्ट टाइम में किया. तो कुछ सीक्रेट्स हैं क्या कि हमें जल्दी प्रमोशन मिल जाए या हम, तो ये कैसे होता है? ये क्वेश्चन काफी वैलिड है एंड ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. एक तो कई सारी कंपनीज होती हैं जो ग्रोथ को एम्प्लॉयज की रिस्ट्रिक्ट करती है कि आप कितना भी अच्छा परफॉर्म कीजिए या आप कितना भी अंडर परफॉर्म कीजिए, आप 3 साल में प्रमोट हो.
यू नो इट्स नॉट गुड। अडोबी ऐसा कुछ भी प्रमोट नहीं करती। इन अडोबी दे, आई मीन, they are phenomenal. I don't have words for this company because they really respect an employee, his hard work, his effort, his holistic contributions to the company and its growth. And उसके बेसिस पे अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आप श्रेयांश कह रहे हैं कि मुझे 1.5 years में प्रमोशन जल्दी मिला, people get promoted here within 6 to 8 months, and I have seen that happening. People who joined in with me got promoted within 6 months. इट कम्प्लीटली डिपेंड्स आप कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं, आपका कितना अच्छा परफॉर्मेंस है, उसके बेसिस पे यू गेट प्रमोटेड। अडोबी में यू डोंट रियली हैव टू वेट फॉर अ थ्रेशोल्ड ऑफ 3, 4, 5 years, ऐसा कुछ भी नहीं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट डिड आई डू। मेरे सीक्रेट्स क्या थे? मेरे सीक्रेट्स बहुत ही ओपन सीक्रेट्स हैं, एंड ऑल ऑफ दोज आर डिराइव्ड फ्रॉम माय फादर, एंड आई एम वेरी वेरी वोकल अबाउट इट। ए, I am never afraid of doing hard work. I really can put my heart and soul into whatever is being assigned. मुझे आज भी याद है मेरा लाइफ का फर्स्ट प्रोजेक्ट जो मुझे असाइन हुआ था, I, my manager and a colleague with me, we used to sit back, we used to do stuff till 4 AM in the night. हमने रात तक बैठकर वो काम किया है, not for 1 day, 2 day, for months, because I am never afraid of hard work. आप मुझे काम दीजिए, I will put my heart and soul into it to do it to the fullest, to do it in the best possible manner. That is A about me. B, I used to take part in everything. अगर मैं एज ए इंजीनियर अडोबी को ज्वाइन कर रही हूँ, माई गोल वॉज नेवर टू जस्ट प्रोग्राम एंड जस्ट डू व्हाट इज बीइंग असाइन टू मी। सिर्फ अपनी जीरास को कभी क्लियर नहीं किया। आई वॉज पार्टिसिपेटिंग इन एवरीथिंग। अडोबी ट्रांसेंड फर्स्ट ईयर में ब्रांड एम्बेसडर बनी थी, नेक्स्ट टाइम में जाकर के अडोबी ट्रांसेंड में MC बनी थी। आप जाते जाते फेसबुक पेज पे आपके अडोबी में आई गॉट फीचर्ड। आई टुक पार्ट इन गैराज वीक, एंड द ईयर आई took part in Garage Week, I won, you know, the most upvoted bright idea. Then Technovation was there. I took part in the committee for SRE support from India, Tech Ops support from India. And then I got Spot Award also. I was doing a lot of things on LinkedIn also, जिसके लिए all over India DX की site से I got a shout out, right, above and beyond. And then I recently got another award like 2 days back also. And then I was mentor in a lot of their Create Change program, जो volunteering programs होते हैं, जो giving back to the community, CSR activities होती है. I was always a part of those activities. Then I hosted, Mrs. Radhika Gupta, she's CEO of EAM, and I hosted her on the behalf of Adobe for International Women's Day. So I was all over the place, you know. I wanted to contribute as much as I could to the company because that is what the company imbibed in. इतनी longingness, इतनी appreciation and इतनी dedication. आपकी कंपनी ने आपको इतना अच्छे से ट्रीट किया, इतने अच्छे से रिसीव किया कि एज एन एम्प्लॉय यू वांटेड टू गिव बैक टू योर कंपनी इन व्हिचएवर वे वाज पॉसिबल। सो दैट इज आई थिंक द की, एंड सबको ये फॉलो करना चाहिए। आप जिस भी वे में कंट्रीब्यूट कर सकते हो टीम की सक्सेस के लिए, प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए, कंपनी की सक्सेस के लिए आप करिए, एंड देन देयर विल बी एब्सोल्युटली नो हिंड्रेंस इन योर प्रोग्रेस। डेज विल बी अप एंड डाउन, कभी कभी आपको भी लगेगा कि यार यू नो चीजें अच्छी नहीं चल रही है, या कभी कभी आपको लगेगा कि आई एम यू नो ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, बट थिंग्स आर गोइंग टू बी कांस्टेंट इन द एंड ऑफ द डे अगर आप परसिस्टेंट एफर्ट दे रहे हो। So I think yeah, that is my secret tip. Don't be afraid of failure and give it your persistent and best effort. इससे मेरे को एक छोटी सी चीज़ याद आई है कि अगर आपको 100 रुपये मिल रहे हैं कोई काम के, तो आप 1000 रुपये का काम करके दो, ताकि जो 1000 रुपये का काम करके देते हैं वही सक्सेसफुल होते हैं। तो लाइक अबव एंड बियॉन्ड जिसको बोलते हैं, एंड आपने वो करके दिया, इसलिए आपको शायद प्रमोशन मिला, एंड लोग यही फॉलो करेंगे तो उनको भी प्रमोशन जल्दी मिलेंगे। तो आपको ये आपने जैसे फेसबुक पेज के अडोब में आप थे, एंड आप मेंटरिंग कर रहे हो, आप कंटेंट डिलीवर कर रहे हो, तो ये सब चीज़ का आपको मोटिवेशन कैसे आता है? My father, like the one and only answer. I very unfortunately, I think मेरी लाइफ का सबसे बड़ा लॉस मुझे लास्ट ईयर हुआ. I lost my father to COVID. But I can tell this one thing for sure. Whatever I am today and whatever I'll be achieving in this entire life, I owe this to him. And जितना भी मोटिवेशन है, जितना भी फेलियर सबकी लाइफ में आता है, मेरी लाइफ में भी बहुत ट्रेमेंडस फेलियर आया. सबसे बड़ा फेलियर था, I was not able to save my father. I was there with him for 45 days in the hospital fighting, but I could not save him from COVID, right?
बट उस चीज से निकलने के लिए दैट ज़ील, दैट मोटिवेशन ही हैज गिवन टू मी फॉर लाइफ, बिकॉज वो खुद उस बैकग्राउंड से थे, ही इज वन ऑफ द यंगेस्ट PhDs इन इंडिया। 2021 की एज में हम लोग ग्रेजुएट नहीं होते। माय फादर वाज अ PhD होल्डर एट दैट अ यंग एज, एंड ही वाज कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ पे उनके पास पढ़ाई के लिए फीस देने के लिए पैसे नहीं थे, यूनिफॉर्म खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, यूनिफॉर्म यूज्ड टू गेट टर्न ऑफ एंड वो वही पहन करके जाते थे। एंड देन ही एंडेड अप डूइंग 5 to 6, 7 degrees. He ended up touring around the world, 35 countries. He ended up gifting himself his dream car. Everything he did with his hard work. उनको देख करके मोटिवेशन आज भी आता है। जितना लाइफ आपको पीछे खींचे, जितना भी आपको लाइफ में लगे मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास कनेक्शंस नहीं है, लिंक्स नहीं है, मेरा टाइम हमेशा खराब चलता है, आई एम नेवर फॉर्चुनेट, मेरे पास लकी अपॉर्चुनिटीज नहीं आती, उतना ही आप रबर बैंड की तरह खुद को ट्रीट करो, प्रिपेयर करो, हार्डवर्क करो, ट्रीट योर सेल्फ लाइक अ रबर बैंड जिसको लाइफ पीछे खींच रही है, और जितना पीछे लाइफ आपको खींचेगी यू गो अहेड विद दैट अ बूमरैंग, उतना आगे आप जाइए। देयर इज नेवर अ स्टॉपिंग। आप अपनी लाइफ में सबसे बड़े मोटिवेशन खुद बन सकते हैं और अपनी लाइफ में सबसे बड़े हिंडरेंस भी आप खुद बन सकते हैं। इट इज ऑल इन हियर। यू हैव टू बी वेरी वेरी गटेड, यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर योरसेल्फ। सो आई थिंक माय लाइफ, माय मोटिवेशन, एवरीथिंग्स कम फ्रॉम माय फादर एंड एन नंबर ऑफ डिफरेंट थिंग्स कम्स। या एक्चुअली वो अभी जहाँ पे भी है वो देख रहे हैं आपको, एंड वो बहुत खुश हैं कि आपने इतना तरक्की एंड आप ऐसे ही प्रोग्रेस करते रहिए, वो भी यही चाहते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू फॉर टेकिंग आउट दी टाइम टू टॉक टू अस, एंड अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो ये वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, एंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज।